Dear students, Assalamu alaikum. Today my topic is diversity and discrimination. We will start from page number 13. Difference and prejudice. There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statements. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress, and think like us. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times, we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also form certain attitudes and opinions about others who are not alike, who are not like them. Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy as some of these statements. Then these become prejudices that we carry about them. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. We can be prejudiced about many things: people's religious beliefs, the color of their skin, the region they came from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudices about others are so strong that we do not want to form friendships with them. At times we may even act in ways that hurt them. तो बच्चों, आज जो हमने ये सबक पढ़ा, इसमें हम डिफरेंस और प्रेजुडाइस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि जो ये डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसमें बहुत से चीज़ हमें सीखने को मिलेंगी. नंबर 1, there are 8 major religions in world. यानी इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा ये वर्ल्ड है, जो हमारा ये दुनिया है, इसमें कम से कम 8 मेजर रिलीजन्स हैं, जो बड़े बड़े मज़हब हैं, जैसे इस्लाम है, जैसे क्रिश्चियंस हैं, जैसे ये हैं जीव्स हैं, जैसे हिंदूज़ हैं. तो ये बड़े बड़े रिलीजन हैं वर्ल्ड में. तो जो हमारा हिंदुस्तान है, इसमें तकरीबन जो ये पूरे 8 मेजर रिलीजन्स हैं, इनकी प्रैक्टिस होगी, यानी इनको मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं. और दूसरी बात यह है कि देयर आर 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, यानी 1600 लैंग्वेजेस हैं इस पूरे दुनिया में जो लोग बोलते हैं. एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, यानी
हर एक मुल्क में, हर एक स्टेट में अलग अलग लोग रहते हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनका उठना बैठना अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनके कपड़े जो हैं लगाने का तरीका अलग है। इसी तरह उनके वो जो त्यौहार मनाते हैं उन पर वो डांस करते हैं, गाते हैं, वो भी अलग है। इसी तरह एक और पॉइंट है हमारे पास कि वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। यानी अगर हम कभी कहीं जा रहे हैं तो हम अपने आप को फील सेफ तब करेंगे, यानी हम अपने आप को तब सेफ फील करेंगे जब हम उन लोगों से मिलेंगे जो हमारे जैसे हों, जो हमारी ज़बान बोलते हों, जो हमारे जैसे कपड़े लगाते हो, हमारे जैसे खाना खाते हों, टॉक, वॉक, ड्रेस, एवरीथिंग इज सेम विद अस, देन वी फील सेफ एंड सिक्योर। अगर हमें कभी अजनबी लोग मिल जाएं तो हम उनमें अपने आप को सिक्योर या सेफ फील नहीं करते हैं, महसूस नहीं, क्योंकि उनके साथ में हमारी ज़बान मिलती है, उनके साथ हमारे वो कपड़े, उठने बैठने का ढंग मिलता है। तो इस तरह से हम अपने आप को बिल्कुल अजनबी महसूस करते हैं, तो हम अपने आप को अनसेफ समझते हैं, क्योंकि उनके साथ बातचीत करने का तरीका हमें मालूम नहीं होता है, और उनके साथ उठने बैठने या जो मतलब उनका तरीका है अपने लोगों के साथ उठना बैठना, तो उसको सीखने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। तो उस तरह से हम उनके साथ जब कभी भी हम अजनबी या कोई ऐसा आदमी देखें जो हमें नावाकिफ़ लगे, तो हम अपने आप को सिक्योर महसूस, न सेफ महसूस करते हैं और न सिक्योर। तो इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। यानी कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हम बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं और वो हमें अजनबी लगते हैं, तो उनके साथ हमारी बातचीत करना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनके साथ कैसे उठें, कैसे बैठें, इनको अपने मतलब अपनी लैंग्वेज कैसे बताएं। तो उस तरह से हमें बहुत मुश्किलात आते हैं, यानी हम अपने आप को मतलब बिल्कुल अजनबी समझते हैं, स्ट्रेंज लग रहे हैं हमें वो लोग, क्योंकि वो न किसी तरह से हमारे साथ मिलते जुलते नहीं हैं। उनके कपड़े भी अलग हैं, उनकी बोली यानी लैंग्वेज वो भी अलग है, उनका खाना पीना भी अलग है, तो बाकी तरीके हैं उठने बैठने के वो भी बिल्कुल अलग हैं। तो इसके बाद और एक पॉइंट है, पीपल आल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। यानी कभी हम अजनबी लोगों से मिलते हैं तो उनके ओपिनियंस, उनके जो ख़यालात होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वो कभी ऐसा भी समझते हैं कि ये हमारे जैसे नहीं हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, या ये मतलब पुराने लोग हैं, या गरीब लोग हैं, या मतलब पैसे वाले लोग नहीं हैं। तो उनके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, तो वो हम लोगों से नहीं मिलते हैं, तो वो हमसे अपने आप को अलग करते हैं। इसी को बोलते हैं पीपल हु फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। यानी जो उन जैसे लोग नहीं हैं, हमारे जैसे अगर हम किसी अजनबी को मिल जाएंगे तो हमें भी हिचकिचाहट हो जाती है कि हम कैसे इसको अपनी बात समझाएं या इससे अपनी वाकफियत करें। तो इसी तरह वो लोग भी हमें स्ट्रेंज समझते हैं, वो हमें दूसरी नज़र से, दूसरे ख्याल से देखते हैं। इसी तरह एक और पॉइंट है कि विलेजर जो हैं दे आर इग्नोरेंट, जाहिल लोग होते हैं, इनके पास ज़्यादा इल्म नहीं होता है क्योंकि गांव में रहते हैं, और इनके पास बाकी जो रहन सहन या बाकी जो इकोनॉमी के मतलब जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी कम होते हैं। तो ये जाहिल लोग होते हैं क्योंकि इनके पास पूरी फैसिलिटी नहीं होती हैं। इस तरह से अगर हम सिटी के लोगों को देखें, पीपल लिव इन सिटीज़, दे आर मनी माइंडेड एंड लेजी। वो क्या होते हैं, वो आराम करने वाले आदमी, मतलब आराम से ज़्यादा मतलब रखते हैं और पैसे कमाने से, तो उनको गरज ही होता है कि हमें पैसे कैसे मिले, किस तरह से हासिल हो जाएं। तो उनका माइंड सेटअप जो होता है, उनका जहन जो होता है वो पैसा वाला जहन होता है, यानी उसको बोलते हैं पैसा जहन। तो वो ज़्यादा रुपए कमाने के गरज में अपने आप को मतलब इस्तेमाल करते हैं, और बाकी लोगों से उनका कोई
لینا دینا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پریجوڈائس، یہ تعصب جو ہے انسان کے اندر ہوتا ہے. مطلب کوئی مطلب نسل پر تعصب رکھتا ہے، کوئی مطلب اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، دوسرے کو انفیریئر سمجھتا ہے. یعنی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سفید لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں، یہ کالے لوگ ہیں، یا یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں. تو اس کو بولتے ہیں پریجوڈائس. یعنی دوز پیپل ہو آر تھنکنگ نیگیٹیولی اور سی دیم ایز انفیریئر، یعنی دوسرے کو انفیریئر سمجھتے ہیں. when we think that only one particular way is the best and right، اگر ہم اسی راستے کو اپنائیں گے کہ ہم دوسرے کو انفیریئر سمجھیں گے، تو اس طرح سے ہمارے درمیان ایک ڈفرینس بن جائے گی. فار ایگزامپل اگر ہم سوچیں گے کہ جو انگلش جانتے ہیں یا انگلش پڑھتے ہیں وہی لوگ زیادہ قابل ہیں یا زیادہ امیر ہیں، تو اس طرح سے ہم باقی لینگویجوں کے ساتھ انفیریئرٹی کرتے ہیں کہ ان کو سمجھتے کہ یہ اچھی لینگویج نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو اپنے ذہن میں بڑے سمجھتے ہیں. اس طرح سے ہمارا جو یہ آج کا ٹاپک تھا ڈائیورسٹی اینڈ ڈسکرمنیشن، آج کے لیے اتنا ہی. تو اس کے بعد میں نے ایک اور کوشچن لکھا ہے آپ کے لیے، جو آپ اپنی کاپیوں پر لکھیں گے اور اس کو قلم بند کریں گے. کوشچن ہے واٹ ڈو یو مین بائی ڈفرینس اینڈ پریجوڈائس، یعنی ڈفرینس اور پریجوڈائس کیا معنی رکھتا ہے. ڈفرینس از دا ویریشن ان دا یوز آف لینگویج، اسٹیٹس، ریلیجن، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور جیوگرافیکل سیٹنگ. It is natural. Prejudice is an idea with negative feelings for those people who are different from us. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. باقی وسلام.